السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے چند پالیٹیشنز اور 2 عدد ناراض سیاسی کارکنوں کے ساتھ. ہاں جی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر جناب. تھی سناؤ ٹھیک ٹھاک. کنی تھی سانو عزت دیتی ہے. ایت کسی ووٹ تو دینا ہے. میں تو الیکشن لڑوں گا ہی نہیں. ساری پارٹیاں ووٹ دے دے کے تھک گئے ہیں جناب. کوئی تو ایسا بندہ آوے جو ساڑھے سے کچھ سوچے. آپ کے حالات شروع سے ہی ایسے تھے؟ ہاں جی. کس پارٹی میں آپ؟ پہلے ایسی پٹھو پارٹی جی سا. اچھا جی. ابا جی، امی، میں، چھوٹا برا، دادی. اس تو بعد اسی آگے نواز شریف دی پارٹی. اچھا. ابو، میں، امی. اور دادی بھول گئے آپ؟ نہیں، دادی مر گئی سی. دادی مر گئی، حاصل ہی کیڑی گل. اچھا. پھر اسی آگے پی ٹی آئی. او ہو. میں بھی یہی کیا سی، میری بیوی نے بھی یہی کیا سی. کیا؟ او ہو. اس بعد دیکھ لو ساڈا حال. ہر چیز مہنگی ہے، اگ لگی ہر چیز نو. اوہو، یہ کتنے جائیے؟ یہ تو آپ بھائی جان. میں ریٹائر ماسٹر ہوں. آفتاب سیلیبریشن ٹائم ہے، آپ ادھر ٹائم ویسٹ کریں. I was looking at you and I was like, what is going on? ایپلوان جی کون ہے؟ ڈمی میوزیم سے آئیں شہری رحمان ہے، اور ساتھ یہ ڈمی میوزیم سے آئیں مریم نواز ہمارے ساتھ. خاقان عباسی اور کوئی اللہ معاف کرے تبلیغ والا نہیں بیٹھا لوگ میرے ساتھ. جاہل آدمی، خاقان عباسی تمہارے والد کا نام تھا، تمہارا نام شاہد ہے. آفتاب, I'm feeling so well today. It's like Powerpuff Girls. We did it. ٹاس پہ تو سلیکٹ ہوئی ہو تم، باتیں تمہاری ٹکے کی ہیں. آفتاب، ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ پالیٹکس کا حصہ ہے. اب اگر اینگری گرینڈ پا سیاست سے آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں تو اس میں میرا تو کوئی نہ قصور نہیں. یہ میں ہوں، یہ مریم ہے، پیچھے سینٹ ہے، اور ہماری پارٹی ہونے والی ہے. آفتاب، یہ میں ہوں، یہ حسن بھائی ہے، اور میرے کنہ دی پارٹی ہو رہی پئی ہے. شہری صاحبہ، ملتان میں تو جشن ہو گیا، آپ بھی آئیں گی؟ I think it's getting very hot. Yes, it is. تو آپ کو پتہ اسکن ٹین اینڈ آل دیٹ، سو I'll avoid it. اور پھر علی حیدر نے جو بات کی ہے اس کے بعد تو ملتان سے میرا دل ہی اٹھ گیا ہے. یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ ایک طرف تمہاری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، دوسری طرف تم سینیٹر بن رہے ہو. تو کون لوگ ہو تم لوگ؟ بیچاری نہ دور بیٹھے ہیں، یہ حال میرا کیوں ہے؟ It's our day today. We were supposed to celebrate it. آج یہاں پہ آپ نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے ان کو بلا لیا ہے. You should not have called him today at least. یہ خالہ جی سی این این نہیں ہوندے؟ CNN دے جو سگنل جاندے ہو جی آواز ہوندی. مریم, I had to say something to you personally. I was about to call you, لیکن آج موقع مل گیا ہے. مجھے ان کی شکایت کرنی ہے. یہ عباسی صاحب کی یا حسن نثار صاحب کی؟ عباسی کی بات کر رہی ہوں. حسن نثار کی شکایت تو میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کروں گی. کیوں وہاں کیوں کریں گی؟ اس کے لیے تو اتنی بڑی عدالت ہی بنتی ہیں. نہیں نہیں، میں انہاں دی شکایت اگر کیتی نا میں بہت وڈی عدالت چ کراں گا. کہاں پہ؟ مولا دی عدالت میں. یہ عذاب ہے ساڈے تے یقین. پھر بھی آپ ہر بار آ کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. مینوں آپ بھا دیندے بھی. میں کیا بھی سی مینوں ادھر بھا دیو تے پاگل کھوتے ہوندے جی. جاؤ اپنے منہ ویکھو بھرو. اوے اج سانو منہ ویکھن دا مشورہ دے رہے ہو. ووٹاں تو پہلے اسی چنگے پلے ساں. جناب بوئے تے آ کے نہ کی ترلے پائے نے. اچھا چلیں، آپ مجھے بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ باجی جی گل ہے وے تواڈیاں کیتیاں اسی بھگتنے پئے ہاں. آپ ہیں کہاں کے؟ لاہور دا جی، اور کتھوں دا واں. حلقہ کون سا ہے آپ کا؟ 124. جی حمزہ کا ہے. 6 جناب نو کم کہے سی، انہاں چوں ایک بھی نہیں ہویا. کم تھے کیا؟ پہلے میں کیا میرے پڑوئیے دی ٹرانسفر کروا دیو، نہیں ہوئی. میں کیا محلے دی صفائی دا کام نہیں ہویا. پانی ساڈا میٹر کٹ گیا، او نہیں لگا. 2 نوکریاں سن بچیاں واسطے اپلائی کیتیاں، او نہیں ہویاں. کنوں جا کے دسیے؟ جن بہتے نے کم دسے، حمزہ دی وجہ تو باہر نہیں سی آ رہے. بھئی حمزہ کیوں؟ حمزہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اور جناب وعدے سے کر دینے جلسے ہیں چھے. ان کی حکومت ہی نہیں ہے بھائی. حکومت ہوتی تو کر دیتے. وہ تو کام کرتے ہیں لوگوں کے. آپ کو پتہ ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے. یہ کون سا دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں؟ ایڑا دور ہے. تینوں پتہ پاکستان بن چکے ہیں، اور یہ 73 سال پہلے دی گل ہے. یہی 6 کا میں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی دسے سن. ساڈی کوئی سنوائی نہیں. آفتاب صاحب کچھ نہیں بنے گا غریب آدمی دا. 8 بچے نے دے 8. آپ کی بیگم صاحبہ ہاؤس وائف ہے؟ ہاں جی. وہ ہاؤس اریسٹ ہے. تسی تے بچے ویکھ لو گینڈے گینڈے جے ہے. لگتا ہے کسی نے ٹھیپے سٹے. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی میرا کوئی مسئلہ نہیں.
मैनू एक घेर के लिया मैं तो काम ते जान रहा सा किस काम पे? मैं तो ये दोवें स्टेशन ते काम करने क्या काम करते? अपना बड़ा बड़ा बिजनेस है क्या? इन्वेस्टमेंट की है बड़ी ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ Sounds like PTI to me. जाहिल लोगो, तुम्हें पता ही नहीं कि पीटीआई ने मुल्क का कितना फायदा किया है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਦੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ये बंदा मुझे बड़ा मशकूक लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही आप किस पार्टी से। मैं किसी पार्टी की नहीं मेरी तो अपनी पावड़ी हो रही है ये मैं हूँ ये मेरा खोता है और हमारी पावड़ी हो रही है आफ्ताब ये तो जाहिल हैं, जाहिल इब्ने जाहिल, इनके माँ बाप जाहिल, ये जाहिल, इनकी आने वाली नस्लें भी जाहिल होंगी। हद होगी जनाब, असी की कीता है? ओए तुमने हर दौर में इन्हें इलेक्ट किया है और आने वाले दौर में भी इन्हें इलेक्ट करोगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आफ्ताब इनकी वजह से मुल्क आज इस हाल में है। अच्छा जो थक जाता ना तो स्लो हो जाता मेरी बात तो ठीक कर रहे हो। आराम से भी बात हो सकती क्या आराम से बात करूंगा? चल चलिए आफ्ताब प्लीज टेल हिम आई हैव अ हार्ट कंडीशन. आप आराम से बोले ना, वो उनका मसला है बड़ा. आई एम सॉरी. निसार भाजी पहले मेरे को करो सॉरी. ओ जाहिल आदमी, मेरा नाम हसन निसार है. देखो ना खामखा मेरे पे चढ़ाई. और तुम हो कौन? और तुम्हारी औकात क्या है? Myself शेरी रहमान, न्यूली इलेक्टेड सेनेटर. ओए तुम्हारे इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि मैं इस जमहूरियत पे जो लानत भेजता हूँ सही भेजता हूँ. आस्था भेजो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਲਾਂਤਾਂ ਥੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਡੀਆਂ. ਐ ਰਮਾਲ ਦਿਓ 7 ਰੰਗ ਦਾ. ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ. ਅੱਛਾ ਧਰਮਪੁਰੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰ ਮਰੇ. सर मरियम नवाज कह रही हैं कि सेनेट इलेक्शन के बाद वजीर आजम को इखलाकी तौर पर घर चले जाना चाहिए. ठीक. आपके ख्याल से ये जस्टिफाइबल है? इसका जवाब तो वजीर आजम ने दे दिया है कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहा हूँ. और सर अगर वो ना ले पाए तो? एग्जैक्टली मैं भी यही कह रही हूँ कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा. ओए क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा. ओए वो 181 वोट लेके आएगा. Excuse me, ये पिद्दी किसको कहा है आपने? I'm sure मुझे कहा है इन्होंने. कौन में पिद्दी? ये मुहावरा मुहावरा है. है. ये क्या पिद्दी चिड़िया होती है. ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪਿੱਦੀ ਭੰਨ ਛੱਡੀ ਯਾਰ. ਭਾਜੀ ਐਡੀ ਕੁੰਦੀ ਪਿੱਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ. आपको मैं पिद्दी नजर आती हूँ? बेटा मैंने आपको नहीं कहा, मैं मुहावरे का इस्तेमाल कर नहीं, रहा हूं. बाकी आपको नहीं कहा उन्होंने. नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी जमात जो है ना, उसकी वो हैसियत नहीं है कि वो वोट आउट कर दे प्राइम मिनिस्टर को. तो आप इससे एग्री करते हैं? 100%. वो वट में पड़ा हुआ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. आप चंद दिन में देख लीजिएगा, इमरान खान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेगा, बड़ी आसानी से ले लेगा. लेकिन सर अगर वो ना ले सका तो सर फिर क्या? भाई इसका सवाल ही पैदा नहीं होता. सर इस यकीन की क्या वजह है? आप देखिए कि वो जो खातून इलेक्ट हुई हैं, जी कितने वोट लिए उन्होंने? क्यों जनाब? सर 174. कितने वोट जाया हुए हैं? 7 जाया हुए, 174 ले लिए. और ये सीक्रेट बैलेट था. अब क्या होगा? शो ऑफ हैंड. शो ऑफ हैंड होगा. इसमें काफी मुश्किल होगी. इन्हें कहें अगर हिम्मत है तो ये सीक्रेट बैलेट पे करके दिखाएं. नहीं, ये तो फिर आप नया कानून दे देंगी ना, नई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट दे रही हैं आप. सर एक वोट तो मुस्तरद हुआ है शहरयार अफरीदी का. हाँ जी, वो चिल्लाता रहा थ्रू आउट के मेरे से गलती हो गई है, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. और उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है लोगों ने. और उसने एप्लीकेशन हमें दिखाई कि मैंने कितने बजे भेजी, उसके ऊपर क्या क्या साइन हुए. और एंड पे उन्होंने हंस के दिखा दिया कि नहीं जनाब, वोट तो आपका ज़ाया हो गया. जबकि जरदारी साहब को दूसरा बैलेट पेपर दे दिया गया था. हाँ जी, इसलिए कि उनके हाथ में राशा था. एक तो कोई बात ना नो. ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਡਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ. अच्छा, ये 2-3 दिन पहले खबर आई है जो आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है. ਅੱਛਾ जी. नवाज शरीफ ने कह दिया है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का मरियम को बनाया जाए. इससे पहले आई थिंक ही हैड द ऑफिस. Yes, he had the office. Oh my God, I'm so sorry शाहिद. ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ. ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ. ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ. ਨਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਮਰੀਮ. आप डरते क्यों हैं? मैं डरता नहीं हूँ. पक्की बात? हाँ जी. उनसे भी नहीं डरते? उनसे तो सारे डरते हैं. मैं नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती, ना मेरा बाप डरता है. तो फिर बैठे भी तो बाहर हो ना. कुछ कहा आपने? मैं निसार भाई को कह रहा. ओए जाहिल आदमी, मेरा नाम हसन निसार है.
ਭਾਜੀ ਕੋ ਦਸਤਾਨੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਹੱਥ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਦੇਣਾ 7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੁਮਾਲ। ਅਜੀ ਥੋੜੇ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ। ਭਾਜੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ बढ़ सकते। अच्छा, गिलानी साहब की जो जीत है जी बिल्कुल। उसे आप कैसे लेती हैं? मेला तो जरदारी साहब लूट गए। तो जरदारी साहब भी हम ही में से, ऐसी कौन सी बात है? ओए शर्म की कमी है और कुछ नहीं। क्या मतलब? आफ्ताब बात बड़ी सादा है। ओए इन लोगों ने जरदारी को लाहौर की सड़कों पे घसीटना था और अब देखो उसको सर का ताज बनाया हुआ है। ओए कौन लोग हो तुम? ओए बीबी तू तो चुप कर। बीबी चुप कर, तेन खुदा दा वास्ता चुप कर बीबी। मेरी बात सुनिए। ओहो क्या हो गया? मेरी बात सुन। आई प्रॉमिस यू अब वो बराह रास्त नहीं करते। अच्छा जी, फ्यूचर क्या देखते हैं आप? इमरान का? नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। आफ्ताब, I see you're avoiding me a lot. नहीं, आई एम नॉट अवॉइडिंग यू। यू आर सच अ फ्रेंड, यू आर सच अ डियर फ्रेंड। If you'd asked that question to me, that अच्छा, आप फ्यूचर बताइए। Lonely, I am Mr. Lonely. I have nobody to call on my own. Yeah, lonely. Who is Mr. Lonely? इमरान खान? Yeah, जी. एक गाना हमारी तरफ से भी होना चाहिए। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। यार मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारा सेगमेंट नहीं है, प्लीज। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा जी। सर, सेनेट इलेक्शन के नताइज पर आप क्या तबसरा करेंगे? सेनेट इलेक्शन के बारे में इंतहाई इख्तिसार से मैं यही कहूँगा कि इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त था। इसमें अंडर द टेबल बहुत कुछ होता है, बिल्कुल। और सूनर और लेटर ये पता चल जाएगा, ये जो 7-8 वोट्स आगे पीछे हुए ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि इन तक बैलेट पेपर्स तक एक्सेस होगी। बैलेट पेपर्स तक एक्सेस का मतलब ये नहीं कि जाओ और संदूकची खोलकर देख लो कि ये बैलेट पेपर्स हैं। उसकी तह तक पहुंचो कि किसने किसको कैसे वोट दिया। बिल्कुल। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस, कोई फोरेंसिक्स नहीं चाहिए। जब एक्सेस मिल जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जावेद साहब, आपसे मेरा सवाल है, आप किसको वोट करेंगे इस बार? मैं जिसको पहले वोट देता है उसको ही वोट दूंगा। Javed, before answering it completely, don't forget I'm here too. सर मैं वादा करता हूँ मैं पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा अगर ये मसाइल हल कर दें जो मैं कहता हूँ। Nidal, I can do anything except that kut khana. क्यों? क्या आपका प्रॉब्लम क्या? आप कुत्ते की वैक्सीन क्यों नहीं बनाती? नहीं आफ्ताब, वो तो हो ही रहा है, but that's not the top priority. कैसे जाहिल लोग हो, तुम्हें तुम्हारी तरजीहात का ही नहीं पता। बात सुने। आफ्ताब इसको चुप कराओ। ऐसा नहीं, मैं कैसे चुप करूं? बार बार आप डांट देते हैं। सिमसन कार्टून जो जी खबर आ रही होंगी एवं राग का झंडा बनया पिछे 2-3 बांदर बंदर क्या बोलते? पता नहीं वो कार्टून दे भाजी होर उची बोलना तो बोल लो, मैं जाना फिर क्योंकि एवं थोड़ा जहा मैं सुन रहा वो भी बंद हो, मैं दफा हो। रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। आज कौन सा शेर ठीक करवा रहे हैं आप? वो शेर जो किसी के साथ मंसूब है। जी जी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। ये किसका शेर? इकबाल। कहा तो यही जाता है जी, इकबाल का। नहीं, कुछ लोग हाली के साथ भी मंसूब करते हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का है। सारे है कि ना असल ये ना इकबाल का है ना हाली का है। ये मौलाना जफर अली खान का है, जिनका अखबार था जिम्मेदार, उसमें छपा था ये शेर। और इन्हें बाबाए सहाफत भी कहा जाता है, मौलाना जफर अली खान, जिन्हों का अंडरपास के नाम ही जी। और इसमें कन्फ्यूजन की वजह भी सियालकोट ही है, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम सियालकोट, और इसलिए इकबाल के साथ एसोसिएट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बारहा इसे इकबाल का शेर कह के कोट करते रहे।
अच्छा, तो सियालकोट से इनका ताल्लुक है? वजीराबाद, वजीराबाद। वो गुजरांवाला डिवीजन में है और उसी डिवीजन में सियालकोट भी है, नारोवाल भी है, गुजरात भी है। यूं समझ लीजिए कि नेबरिंग सिटी है। अच्छा जी, मैं अब आपका टेस्ट लेने लगा हूं जो मैंने पिछली दफा कहा था। तकरीर करना, इसका मतलब बताइए। इसका मतलब सर फर फर बोलना। ये आपका टेस्ट है, दोहराई हो रही है, रिवीजन हो रही, क्योंकि ये पहले हो चुका है। तकरीर करना, खामोश रहना। यानी उसका उलट बता। आप पुठा कही जो सुनी तो साड़ी जानी। इसका मतलब है रुकना, रुकना, ठहरना। घटा रिवीजन होनी साड़ी। गल ही उल्टा है, तकरीर करना, रुकना। सर ये तकरीरी मुकाबले जो होते थे, ये गलतुलाम है ना। अच्छा जी। अब हुआ क्या होगा? आया यहाँ पर ना भाई एक तीसरा आता है और वो ना किसी नलायक खानदान का बच्चा है कि मैं तो उसके सामने आइंस्टाइन हूँ। अभी वो आएगा और वो सारी बात का सत्यानाश करेगा। अब किसी जलसे में जी सर, मुकर्रिरीन खिताब कर रहे थे, बस आने वाला है, तुमने गौर रखा। एक आदमी हाथ में कागज थामे डायस की तरफ आने लगा, तो मेजबान ने कहा होस्ट ने कि भाई आप जरा तकरीर कीजिए। वो दे करने लग पे। अभी देखना वो साला तंबुओं के नीचे से इंटर होगा और चुप करके वहां खड़ा हो जाएगा और वो सोचेगा कि इसने कहा है तकरीर करो, और वो बंदा बोलना शुरू हो गया। ठीक है, इन्हें लानती ने बाहर आके कहता जी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ, और असल लानती मेरे वर्गे ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। उसने कहा साहब आप तकरीर कीजिए। जी जी। ठीक है, वो फिर आने लगा तो उसे कहा आप तकरीर कीजिए। वो ये कहना चाह रहा था और उसने कहा कि आप रुकिए, अभी लोग कर रहे हैं, आप जरा तकरीर कीजिए। तो जो तीसरा पास खड़ा था, खड़ा नहीं, तंबुओं के नीचे से आया वो, तो उसने देखा कि ऐन उस वक्त इसकी बारी आ गई। उन्होंने कहा इसको तकरीर करने के लिए उसने कहा था और अब देखो ये तकरीर कर रहा है, ये बोलना शुरू हो गया। उसने बाहर जाके ये बताया कि तकरीर का मतलब होता है स्पीच। हालांकि वो ये कह रहा था कि भैया अभी रुकिए, अभी इंतजार कीजिए, तवक्कुफ कीजिए। इसका मतलब है रुकना, ठहरना, खामोश होना। क्यों जी? हदीस से तकरीरी, हदीस से तकरीरी क्या है? कोई ऐसी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी जाए और उन्होंने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की। जी, खामोशी इख्तियार की। इसका असल मतलब तो ये। और देखो ना, दोहराई में ही तुम रह गए, आधा टाइम तो मेरा दोहराई ने ले लिया। अब पीछे जो 8, 7, 10 लफ्ज हैं उनका मैं क्या करूं? इन्हां च तीसरा ना आवे। पहला लफ्ज बहादुर, कमजोर, डरपोक, इसका मतलब है बहादुर का। मरा हुआ, मरा हुआ, लागर। नागी तुम बहुत बहादुर हो। इसका मतलब दलेर, जवां मर्द, कर रहे जो सुना है वही मतलब निकला न है। डर। ये मशहूर ये है। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ मतलब होवे लंगड़ा, माजूर, मफलूज, फालिज ज़दा इंसान को बहादुर कहते हैं। बंदा कभी वो सामने ना बहादुर बैठा उसकी मदद करो। बहादुर आके कह रहे हो फलाओ वे बहादुर ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹਾਦੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ बहादुर ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाता। ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है और ये तलफ़ुज़ में बहादुर नहीं, बहादुर। बहादुर, बहादुर भाई बहुत बहादुर, एडा हटा कटा है बहादुर। तू कम क्यों नहीं करता बहादुर? बहा क्या मतलब? बहना सर। खूबसूरती, हुस्नो जमाल, बहाउद्दीन, दीन की खूबसूरती, मंडी बहाउद्दीन। और इसमें वाव नहीं है, हमजा है। बहाउद्दीन वो वाव डाल देते हैं, गलत है। बहादीन नहीं होगा, बहा हमजा डालें वो बहाव की आवाज देती है। तो ये बहाव मीन्स खूबसूरत, हसीन। और दुर का मतलब है मोती, दुर्रे शाहवार, दुर्रे शाहवार, दुर्रे नायाब, दुर्रे नायाब। यानी अगर कोई दुर लानत कह रहे वैसे समझो उसमें मोती देन दे है। नहीं, वो एक और दुर है। सर हुण होया कि ये दसो। अभी वो आएगा, तुमने ध्यान रखना से। एक बांह वाली बकरी हुंदी, एक कीमती मोती, खूबसूरत, ये इसका मतलब है। सवाल ये है कि बहादुर कहते किसे? ये जो आलिम फाजिल आदमी होता है ना, पढ़ा लिखा, ज़हीन,
वो बहाए दुर होता है, जिसको हमने बहादुर कर दिया, बहाए दुर, खान बहादुर। अब खान बहादुर कोई बहुत बड़े सूरमा नहीं होते, लेकिन उन्होंने कोई किताब लिखी होती है, कोई डिक्शनरी कंपाइल की होती है, कोई रिसर्च पेपर तैयार किया होता है, खान बहादुर का खिताब मिलता है। एक हिंदी लफ्ज जो आपको बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं, दुर, वो मोती नहीं है जी, दुर्गत। दुर्गत, दुर्गत क्या है? दुर का मतलब है बुरी, बुरी, और गत हालत, बुरी हालत, बुरी हालत, दुर्घटना। एक घटना, एक दुर्घटना। दुर्घटना वैसे पता है, बुरा, बड़ा वाकया, पर वो वारदात को भी कहते हैं। हादसा। लफ्ज बोरी जी, बोरी, ਉਹ ਸੇਬੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी। अक्सर पीछे बनी होती। बोरी का मतलब बताओ। बोरी का मतलब सर सेबे की बोरी होती है। बोरी कहते हैं गंदम को, जौ को, बाजरे को, दाने को। अब हुआ ये होगा, आने वाला है भाई, मुबारक हो, वो आने वाला है। वो सबसे पुरानी बोरी के पीछे से निकलेगा। अब इसमें कोई तीसरा नहीं था, वो दूसरा ही अहमक था। वाह वाह, शुक्र। एक आदमी ने अपने मुलाजिम से कहा कि वो बोरी उठा कर लाओ। अब बोरी से मुराद थी गंदम, लेकिन वो मुलाजिम चूंकि बिल्कुल अनपढ़ था, वो गया तो उसने कहा जी ये जो पड़ी है, उसने कहा हाँ ये ले आओ। तो उठा के ले आया, उसने सबको बताया ये जो थैला होता है ना, इसको बोरी कहते हैं। अच्छा, पहले बता ना, शिकायती बहुत। हालांकि वो उसके अंदर मौजूद गंदम से मुराद ले रहा था। बोरी का लफ्ज किससे निकला? बोरियत से, बूर से। बूर का मतलब है भूसा, बूर के लड्डू सुहाने, और वो दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बूर के लड्डू होते हैं कि ऐसे लड्डू जो नजर कुछ आ रहे हों लेकिन हों कुछ। ये सारी मुसीबत साढ़े हस्ते ने। दूर के भूसे लड्डू। बूर के लड्डू यानी तुम ये प्लॉट खरीद रहे हो, ये एलडीए से अप्रूव्ड नहीं है, ये बूर के लड्डू है, मत लेना, घाटे का सौदा है। अच्छा, मैं आज तक ये मसाला नहीं कितने सुनी है। तालीम बहुत मुश्किल, ये तालीम नेक्स्ट लेवल है। ये भूसे के लड्डू में ख्याल एफए तो बात, क्योंकि मैं वो भूसे के लड्डू आए कहां से? बूर के लड्डू। बूर के जो है, बूर के नहीं, बूर कभी नहीं सुना? चंदा मामू दूर के, बड़े पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, हमको दें प्याली में, प्याली गई टूट। नहीं, सारे बूर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ लफ्ज वैसे। औंधा तो है, तो उसका मतलब क्या है? बड़े पकाए बूर के, बड़े पकाए बूर के। बड़े तो हो गए ना गुलगुले टाइप, दही बड़े, दही बड़े, दही बड़े, भूसे के, हंस के, हाँ जी, जो बने होते हैं। सब लकड़ी को जब छीलते हैं तो बूर निकलता है। नहीं, लकड़ी को जब आरी के साथ काटते हैं ना, तो बुरा निकलता है, तो उस वक्त बुरा निकलता है। जब छीलते हैं तो उसकी छाल है जो नीचे निकल। छाल में और बूर में फर्क है। भाई आपको याद है कि आपका घर कहाँ है? अच्छा जी, एक लफ्ज जी, ये रिवीजन है जी, और आपको हर सूरत आनी चाहिए। हाँ जी, स्पेशली यू। कौन सर? मैं? तुम तो सवाल ही पैदा नहीं हो। मैं कैफी की बात कर रहा हूँ। जज्बा है, जुनून। जज्बा क्या मतलब है? जज्बा सारा है, ये जोश, जज्बा, हिम्मत, हिम्मत। अभी आपने देखना जज्बे के साथ होता क्या है। जज्बा सर वक्फे को तो नहीं कहते? फासला, फासला क्या सर? वक्फा फासला में जज्बा रखो, करीब करीब था मैं। कि इस्लामाबाद और लाहौर के बीच तकरीबन 450 किलोमीटर जज्बा है। जज्बा है। यानी जिसे बहुते बच्चे और मतलब कोई दो बच्चों के बाद आपने जज्बा रख लिया, वो बात है ना, उस जज्बे नु दाद समझे। जज्बा का एक और मतलब भी है, गैज़ो गज़ब, लेकिन असल मतलब इसका फासला है। अच्छा, एक और रिवीजन। कादे ਲਈ ਇਹ ਫਰੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? गुस्सा थूक दो, निवाला फेंक दो, ये तो मुझे याद। यस, वाह, बब्बू राणे को पता है कि निवाला फेंक दो। और फैज अहमद फैज दे साले एक लफ्ज किथों याद कर? पूरी फरंगे आसपी असी बोल मारी, सिर्फ तेन थुक याद रहा। उसे गुस्सा पता क्यों चढ़ रहा? क्यों सर? क्यों?
अच्छा जी, आज का शेर जी सर। आज का शेर जफर इकबाल साहब का। माशाल्लाह। जी सर। कहते हैं, अक्सर मेरे खामोश अंधेरों के उफक पर, अक्सर मेरे खामोश अंधेरों के उफक पर तादेर चमकती रही आवाज तुम्हारी। वाह वाह। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि एप्पल आईफोन 12 मंगवाने वाली खातून को एप्पल जूस भिजवा दिया गया। वाह वाह वाह। पाकिस्तान से? नो, चाइना। $1500 उसने खर्चे और आईफोन 12 ऑर्डर किया जी, और आया क्या उसे? एप्पल जूस। जूस का डब्बा। जूस का डब्बा। और वो कहती है कि मैंने जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए राब्ता करके जो प्रॉपर चैनल से मंगवाया, लेकिन हो गया होगा। सर ये बहुत बड़ी वैसे। जी, उसने पुलिस केस रजिस्टर करवाया है, इसकी तहकीकात हो रही हैं। ये अनकरीब जो कुछ भी हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मोस्ट प्रॉबेबली। मैं नहीं समझता कि ये क्राइम हुआ है, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी मार्केट है, 750 बिलियन सालाना सेल है, 750 बिलियन। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर्स। 700 बिलियन डॉलर। ये 750 युहान्स नहीं है सर। बड़ी महंगी महंगी चीजें लोग ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। वही, इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि एक यॉट ऑर्डर की गई। यॉट 2005 में ये ऑनलाइन ऑर्डर हुई जी, और तकरीबन $150 मिलियन की है ये, जिसके अंदर हेलीपैड है, जिम है, सिनेमा है, फूड कोर्ट है। नहीं तो ਯਾਟ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਦੁਆਣਾ ਨਿਕਲਾ ਹੈ? यॉट होती क्या है? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਸ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। तो हदवाना छोटा सा होता है। वो यॉट आई और उसका मालिक बड़ा खुश है। इंडिया में आपको याद है आईफोन के बदले एक सोप केक भेज दिया। हाँ जी हाँ जी। हमने कहा पहले ना होश कर, तुम मंगाया की अदर भाई कुछ मंगवाया आपने कभी? मैं जनाब एक लैपटॉप बड़ी अच्छी कंपनी का देखा, मैं क्या लेटेस्ट से मंगवाना चाहिए। मैं जनाब ऑनलाइन ऑर्डर कर दिता। एक महीना पूरा इंतज़ार किया, महीने बाद ऑर्डर आया। मैं जनाब गया, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी साइन करो और पैसे दो। मैं कहा मैंने खोल तो लैन दो। उन्होंने कहा वो बात ही तुहाड़ा काम है, पहले सानू फारग करो। वो जनाब मैं उन्होंने पैसे दिते, वो चला गया। मैं अंदर जाके वो डब्बा खोलिया है। क्या था उसमें? उसमें जनाब एक रजिस्टर पड़ा हुआ था, बहुत मोटा सारा। ਉਹ ਤੇ ਬੋਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਜੂ ਲੈਣਾ ਸੀ। मैं जनाब जो रजिस्टर खोलिया तो वो किसी राइटर का रजिस्टर सी और उन ते फिल्म की कहानी लिखी हुई सी। मैं जनाब जो पहला सफ़ा थले है तो दो भरावां की कहानी सी, दो करैक्टर। एक भरा गरीब हुंदा है तो छोटे नूं छोड़ो कहानी ना सुनाओ। मैं फिर जनाब वो स्टोरी बेच दी। मैं कि कोई तो पैसे वटिए। कितने की बेची? 2500 की जनाब। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਉਹ 2500 ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। सर वो स्टोरी ना बड़े पुराने वक्तां की लिखी हुई सी। तुम्हें कैसे पता चला कि बहुत पुराना? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਥੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। सर मैं एक दफ़ा निकर मंगवाई सी शॉर्ट। तुम्हें क्या आखिर आई थी? मोबाइल यूज़ करोगे ना, सामने आ गई होगी निकर, इनको पसंद आ गई, उसका होगा कोई आतशी गुलाबी रंग होगा, इनको अट्रैक्ट कर गया होगा, इनका यार है तो मंगाओ फौरन। सर मैं साइज भी दिता, हर चीज़ की थी। निकर की निकरा लिया होता है। उन्होंने वो किसी चाइनीज के भलवान की सुरती होनी ना, जिन्हें सिर्फ पट्टी बनी होंगी। वो जापानीज होते हैं और उनको सोमो कहते हैं। सूमो रेसलर। और जो कपड़ा बनिया होंदा, वो कपड़ा छोटा नहीं होंदा। वो कपड़ा सौन लगे खोल लेंदे ने। वो एहतियात नहीं है भी ना, भुल के नहीं बंदा पा आंदा। भाई तुसीं कुश्ती लड़नी, कच्छा पाओ, शर्म करो, को हया करो। तुहानू कैफियर के बंदे भी वेख रहे होंदे। अच्छा ज्यादातर ना लोगों का उन्होंने कुश्ती का ध्यान नहीं होता, कच्छे नहीं होता। ये कदों टुटदा है। अच्छा मैं कभी इस कुश्ती का फैसला नहीं वेखे, कौन जितया है? नहीं नहीं, वो तुम्हें समझ नहीं आती। नहीं सर, बोर ही इन्ना होना, वो चेंज कर मरे हैं। ये दरअसल ना बड़े गोश्त की कुश्ती हो रही होती है। अच्छा एक दिलचस्प बात है सूमो रेसलर्स के बारे में, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, तो गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं उन्हें। ऐसी गाड़ी ही नहीं बनी ना सर। एक गाड़ी चौक के चला रहे हो।
ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ये खाते क्या है वैसे? मीट बॉल्स, गुश्ताबे, गुश्ताबे दे बच्चे ने मशरूम्स और मछली। ये वेल मछली का रहू लभ रहे हैं और ये शादी नहीं करते, इन्हां को होंदे भी नहीं। जिन्हें ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੈਸਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ ਫ੍ਰਿਜ ਸੁੱਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਠਾ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਭੜੋਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਠਾ ਵੱਡੀ ਵੈਗਨ ਚ ਵੱਜੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਠਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਡੇ ਮੋਟੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਖਲੋਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ। ये 100 अंडा खा जाते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਆਂਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਆਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਓਰੀਜਨਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੰਡਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਕੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਕੇ बदी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।